ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸੈੱਲਸ ਦਾ EMF ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾइंड करना ਹੁਣ, ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, सो इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड करनी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। हैविंग EMF E, इंटरनल रजिस्टेंस कितना है ਇਹਦਾ स्मॉल r। ਉਹ ठीक है, हाँ। ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰजिस्टेंस ਬਾਕਸ, वेरिएबल रजिस्टेंस बॉक्स विद अगेन ए की, इधर के की लगाइए आप, इधर लगावे K1 की। ठीक है, K1 की थ्रू गलवेनोमीटर, थ्रू की लगावे आप भी गलवेनोमीटर। ये तो गलवेनोमीटर जरूरी है ना, करंट नू दी डिफ्लैक्शन नू की करने लिए है, शो करने ਲਈ है, फिर डिफ्लैक्शन ਨੂੰ जीरो करने ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, बैलेंस पॉइंट मिलता है। ਉਹ ठीक है, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ। ठीक है, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੀ नो इशू। ठीक है, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰ। ਦੇਖੋ ਇਫ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ if cell is used मतलब we are taking the current from the cell, then ਉਹਦਾ potential difference ਹੁੰਦਾ है। if cell is not in use, not in circuit, then cell ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, EMF ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰजिस्टेंस ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਜੇ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ r ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, E/V -1 × कैपिटल R। देखो जी यही ਹੁੰਦਾ ਨਾ। एंड वट इज़ हेयर कैपिटल R, ये कैपिटल R ए वाला R है, ये कैपिटल R ओ वाला R है जो सैल के क्रॉस लग्या हुआ है। और समझ आई गल? ठीक है, E/V की वैल्यू एक बार E चाहिए, एक बार V चाहिए। E कदों आऊगा, EMF जो सैल यूज़ कदों नहीं होगा, जो आ की रहूगी, ओपन रहूगी। जो आप की क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज कर देंगे, दोनों क्लोज कर देंगे, तो सैल यूज़ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आऊगा बस। और ठीक है, डिफ्लैक्शन दोनों वेले आऊगी, दोनों वाले जीरो करनी है जॉकी नाल, बस प्रोसीजर वही है। ओके, क्लीयर हो गया, मतलब आप ओवरऑल क्लास ये करना है अपन। ठीक है, तो अगेन पोटेंशियोमीटर डिवाइस अपना तो आप सैल कनैक्ट करता, समझ आ गई सारी। तो आप सब तो पहला की करना है, फस्ट ऑफ ऑल क्लोज दी की के, फस्ट केस च ओनली के की क्लोज करनी है, K1 क्लोज नहीं करनी। ठीक है, एक की क्लोज करते हैं, ये रजिस्टेंस का की काम होंगे, ये रजिस्टेंस के नाल ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਮੈਂਗਨੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੋਏ। ਔਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਫਾ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਹੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰजिस्टेंस ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। याद है गल्लां सारियां? ठीक है, तो ओके, क्लीयर हो गया। तो आप सैल नूं इनू करंट फ्लो कराता, करंट की हो गया फिक्स, करंट की कर देना आपां ने, फिक्स कर देना बाय चेंजिंग दिस रजिस्टेंस। करंट किहदे करके आऊगा, इस बैटरी करके आऊगा, ये करके करंट की करांगे आपां, कंट्रोल करांगे, फिक्स करांगे। और गल समझ आ गई, जो करंट फिक्स होना शुरू हो गया, सो आई कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। ठीक है, एंड दिस के इज़ नॉट क्लोज्ड, दिस K1 मस्ट बी ओपन, देन करंट विल फ्लो थ्रू दी वायर। ये सर्कट जो करंट ही नहीं पूरा जाऊगा, फ्लो ही नहीं होया। तो आप की करनी है,
ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਧਰੋਂ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਊਗਾ, ਐਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਦਊਗੀ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਟੇਕ ਏ ਚੌਕੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਦਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, बैलेंस पॉइंट आ जाऊगा ना। चलो मान लो सपोज करो किहड़ा पॉइंट आ गया अपने कोले, आ वाला पॉइंट आ गया। अगेन आप इहनूं की कंसीडर कर रहे हैं, जे पॉइंट, लैंथ आप की कंसीडर कर रहे हैं, आप इहदी L1 कंसीडर कर रहे हैं। सो नाउ दिस सैल इज़ नॉट यूज्ड, करंट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम दिस सैल, ये सैल तो आप कोई भी करंट नहीं ले रहे। गल समझ आ गई, क्लीयर है ना ये। ਦੈਨ ਸਾਸ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ EMF ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ EMF ਆ ਗਿਆ, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस पॉइंट लेंथ L1, लेंथ ऑफ AJ पार्ट, AJ पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। अच्छा इन्हों हटा के की लगाऊंगे, K कांस्टेंट लगाऊंगे, K कांस्टेंट की है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्योंकि ਇਹਦਾ पोटेंशियल जिमें जिमें करंट फ्लो हो रहा है लेंथ ਦੇ ਨਾਲ डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ओके क्लीयर हो गया। चलो फर्स्ट केस ले लो। दैन ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਕੀ ਨੂੰ, ਕੇ ਕੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨਸਰਟ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਕੀ K1 ਆਲਸੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, K1 ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਗੇਨ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੌਕੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ J ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ A ਡੈਸ਼ ਲੈਂਥ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, L2, but now cell is used, now we are taking the current from the cell। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। करंट बहुत माइक्रो मिली एम्पेयर च करंट रहे, मतलब 0.001 0.0001 इन्ना करंट नहीं, बहुत माइनर करंट्स ने, ठीक है। ए जे लेंथ आ गया। नाउ पोटेंशियल की होगा अपने को, हुण नाउ सैल का की आऊगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आऊगा ना, क्योंकि आप हुण सैल नूं की कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यार। यही तो डेफिनेशन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। सैल नूं यूज़ नहीं कर रहे तो EMF यूज़ कर रहे हो तो पोटेंशियल, जिन्होंने आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते सी, तो V प्रपोर्शनल कितना आऊगा, है ना। अगेन की लगाऊंगे, K कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है। दैन की करोगे, रेशो, क्यों, बिकॉज आई वांट टू नो E ओवर V, रेशो कर दो। E ओवर V की वैल्यू कितनी आ गई, L1 ओवर L2, दैन यूज इट हेयर। R की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r दी L1 ओवर L2 -1 इंटू capital R, and this is what your capital R, this is the resistance across the cell। ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। समझ आ गया। आ वाली R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਟ 'ਚ
इनपुट स्टार्टिंग इनपुट देने लिए है। सैल कदों यूज़ हो रहा है विद दैट आर। और ठीक है बस हो गया। तो प्रैक्टिकल जो करांगे आपां अपने को L1 आ जूगी फाइंड कर लाँगे आपां, अपने को L2 भी आ जूगी। आपां आर तो आप फिक्स किया ही है, वो ए वाला आर तो आप फिक्स करांगे ही ना, करांगे। दैन तीनों वैल्यूज़ नोन हो गई, पुट करो आर की वैल्यू फाइंड होगी। और ठीक है सर आर की वैल्यू कहाँ च आओगी अपने को ओम च आओगी। हाँ जी लग गया पता। वेरी निके निके एप्लीकेशनस ने ना। ठीक है नैक्सट क्लासिस आप प्रैक्टिकल्स के बारे गल करांगे, ऑपरेटर्स की लैके गल करांगे है ना। जो आप थोड़ा थोड़ा हुण वर्बली कंपेयर कर लीए पोटेंशियोमीटर ते वोल्टमीटर च की कंपैरिजन है। वोल्टमीटर भी वोल्टेज मैजर करता निक्का जिहा डिवाइस, एडा बड़ा पोटेंशियोमीटर 4 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर भी की मैजर करता है, वोल्टेज ही मैजर करता है। पर एक मेन डिफरेंस यही है, फायदा यह है भी वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है सर्किट तो, कुछ ना कुछ करंट जरूर ड्रॉ करता है, पर पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। तो एक हाईली एक्यूरेट मैथड है टू मैजर दी पोटेंशियल डिफरेंस या EMF। समझ आ गया। और ठीक है एक तो यह बेनीफिट है। ठीक है दूसरा जिहड़ा वोल्टमीटर नूं जे वधिया बनाना है आपां ने तो वह रजिस्टेंस आपां नूं की करना पऊगा, इनफाइनाइट करना पऊगा, क्योंकि वोल्टमीटर एक हाई रजिस्टेंस डिवाइस होंदा है। की करना पऊगा रजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पऊगा। पर इनफाइनाइट रजिस्टेंस का आपां कोई डिवाइस प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इस करके उन्होंने रिप्लेस करके आप इनू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि करंट ही ड्रा नहीं करता सर्किट तो। और ठीक है तो एक तरह का यह एक आइडियल वोल्टमीटर का काम करता है, किदा मतलब एक परफेक्ट वोल्टमीटर का काम करता है, जिहदी रीडिंग वोल्टमीटर नालों की हो सकती है एक्यूरेट हो सकती है, हाईली एक्यूरेट है। और समझ आई गल। ठीक है हाँ तो नैक्सट आप गल करते हैं सेंसिटिविटी की होंगी है, पोटेंशियोमीटर डिवाइसिस की की होंगी है सेंसिटिविटी, कि वो स्मॉल करंट स्मॉल वोल्टेज देने दे नाल किन्नी कुछ ज़्यादा गलवैनोमीटर की दे रहा अपना को डिफ्लैक्शन दे रहा है। ठीक है तो इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी मेन डिपेंड किते करती है के ते। एंड वट इज़ के इज़ योर हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है के अपना। ठीक है यदी सारी सेंसिटिविटी ऑफ दी पोटेंशियोमीटर डिपेंड किते करती है पोटेंशियोमीटर ते सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट ते डिपेंड करती है। स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिन्नी वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट की की होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डाउन एरो मतलब स्मॉलर वैल्यू, ओनी ही सेंसिटिविटी की होगी, सेंसिटिविटी की होगी ओनी ही ज़्यादा होगी किदी पोटेंशियोमीटर। ठीक है स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ के मीनस स्मॉलर चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। पोटेंशियल इको दम नहीं घटना चाहिए, हौली 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 पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू होगा। समझ गए ना, जिन्ना स्लो मोशन च पोटेंशियल घटूगा ए तो लैके बी तक जाते हुए है ना, जिन्ना पोटेंशियल हौली 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 घटूगा उन्नी ज़्यादा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की होगी। समझ आ गया, समझ आ गया पहली गल। ठीक है तो इस कंडीशन को अचीव करने लई अपने को दो तरीके ने। सेंसिटिविटी बढ़ानी है ना आपने, सेंसिटिविटी बढ़ाने के दो तरीके ने अपने को, किहड़ा है या तो की करो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाना है ना आपने, वो घटाना है ना, या तो पहला की कर दो तो के नूं घटाने लिए देखो अपन की करना पऊगा, फस्ट या तो की करो करंट नूं घटा दो, करंट की करो रेड्यूस, तो करंट घटूगा किमें आ रजिस्टेंस बढ़ा के है ना। एक करंट नूं थोड़ा घटाओ, करंट जो घटूगा तो करंट हौली हौली जाऊगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हौली हौली होगी। और ठीक है तो दूसरा एक फस्ट तरीका लग गया पता। दूसरा तरीका की है, के नूं घटाने लिए की करो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ा दो, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर नूं की कर दो ਵਧਾ दो। ये जरूरी नहीं 400 मीटर सेंटीमीटर का होवे, ये 500 सेंटीमीटर का कर लो, 600 का कर लो, 700 का कर लो, 800 का कर लो। और समझ आ गई तो लेंथ तुम ਵਧਾ सकते हो। जो लेंथ ਵਧਾओगे तेन होर वुडन बोर्ड चाहिए ने, होर कॉन्सटेंटन वायर चाहिए है, उन्ना ही सर्किट की हो जाता होर ज़्यादा कंपलैक्स हो जाता है। और समझ गए गल तो ये सेंसिटिविटी होर आप किमें ਵਧਾ सकते हैं बाय
के ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਸਲੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਲੈਂਥ ਦੈਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਰੰਟ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ